હલો મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? હું છું તમારો આપનો ભાઈ માધવ ચૌધરી. બધા મિત્રો અને વડીલોને જય દ્વારકાધીશ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. માનવીની પરમ ચેતનાને પ્રણામ. મિત્રો, આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ગુજરાતના પ્રવાસે છે ત્યારે આજે 25 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી અત્યાર સુધી આપણા ગુજરાતને ના મળેલી એવી અમૂલ્ય ભેટ ઓલ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ એમ્સનું લોકાર્પણ કરીને આપણને એક નવી ભેટ આપી છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે અત્યાર સુધીમાં આપણા ગુજરાતમાં એક બી એમ્સ, બીજા બધા રાજ્યોમાં હતી, આપણા ગુજરાતમાં એક બી એમ્સ હતી નહીં, અને પહેલી વખત અત્યાર સુધીના ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આપણને અમૂલ્ય ભેટ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે એક બહુ મોટું યોગદાન એવું આપણને પ્રદાન કરી છે. તો ઓલ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ રાજકોટ નું ઉદ્ઘાટન આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે થયું છે. 25 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ટોટલ આપણા આખા દેશને 5 એમ્સ નું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. એની અંદર એમ્સ રાજકોટ, એમ્સ ભટિંડા, એમ્સ રાયબરેલી, એમ્સ કલ્યાણી અને એમ્સ મંગળગીરી, આમ ટોટલ 5 એમ્સ નું ઉદ્ઘાટન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યું છે. આરોગ્ય ક્ષેત્રનું એક મહત્વનું પગલું કહી શકાય. અને એમ્સ ની અંદર હાલ છેલ્લા 2 વર્ષથી ઓપીડી સેવા ચાલુ છે આપણા રાજકોટની અંદર, અને હવે આઈપીડી સેવા ટૂંક સમયની અંદર ચાલુ કરવામાં આવશે. એમ્સના માધ્યમથી દરેક નાગરિકને એક તદ્દન ભાવે મેડિકલ સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે અને આપણા ગુજરાતના આરોગ્ય ક્ષેત્રે આપણના મધ્યમ વર્ગના અને ગરીબ લોકો માટે એક સારું આરોગ્ય ક્ષેત્રનું પગલું કહી શકાય, જે આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના એક અથાક પ્રયત્નથી આપણને મળ્યું છે. અને મિત્રો, હાલની અંદર એમ્સ રાજકોટની અંદર પૂરજોશથી કામ ચાલુ રહ્યું છે. 200 એકરની અંદર, 200 એકર જમીનની અંદર એમ્સનું વિશાળ ગ્રાઉન્ડ અને એનું જે આખો એમ્સનું ગ્રાઉન્ડ છે 200 એકર જમીનની અંદર નિર્માણ ચાલી રહ્યું છે. અને 250 જેટલી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી બેડની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. અને એની ટોટલ જે જમીન છે 201 એકર જમીનની અંદર આખું વિશાળ એનું ગ્રાઉન્ડ બનાવવામાં ચાલી રહ્યું છે. પૂરજોશમાં કામ ચાલી રહ્યું છે. ઓપીડી બેઝ ટ્રીટમેન્ટ તો છેલ્લા 2 વર્ષથી ચાલુ છે. આઈપીડી બેઝ ટ્રીટમેન્ટ હવે ટૂંક સમયમાં ચાલુ કરવામાં આવશે. અને એનો પ્રોજેક્ટ જે 1195 કરોડના ખર્ચે આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર રાજકોટ સિટીની અંદર આપણી પહેલી એમ્સ ઓલ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સનું આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 25 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ આપણા ગુજરાતને એક અમૂલ્ય ભેટ આપી છે. તો આપણે આપણા એક દેશના નાગરિક તરીકે અને એક આ મેડિકલ ફિલ્ડના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તો આ એમ્સ આપણા આશા રાખીએ કે આપણા દરેક ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે હેલ્થના સેક્ટરની અંદર એક આગવી ભૂમિકા ભજવશે અને આપણા દરેક નાગરિકને, ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના માણસોને આરોગ્ય ક્ષેત્રે બહુ જ હેલ્પફુલ થશે. વિડીયોમાં એક આપણે એમ્સની ઝલક જોઈએ. મિત્રો, જોડાયેલા રહેજો. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बीते 10 वर्षों का कालखंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति का साक्षी बना है. मिला है सबको स्वास्थ्य का वरदान, जन जन हुआ है आयुष्मान. भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही. स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति के इस अमृत काल में 31 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने. बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हुए. मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से बढ़कर 706 हुई. स्नातक और पारा स्नातक की सीटों में 112% और 126% की वृद्धि हुई. जन औषधि जेनरिक दवा के इस्तेमाल से जरूरतमंदों के 28,000 करोड़ रुपए बचे और एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हुई. इस मजबूत होते हेल्थ इकोसिस्टम को और भी सुदृढ़ करने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजकोट गुजरात से देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार 200 से अधिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण 5 एम्स का राष्ट्र को समर्पण करेंगे. ये 5 एम्स राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी में स्थित है. 750 और 960 बेड की क्षमता वाले ये नए एम्स संस्थाएं अपनी उत्तम चिकित्सा व्यवस्था, हाईटेक मेडिकल उपकरण, वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम के साथ अपने राज्य और आसपास के क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी. इन सभी संस्थाओं के सुपर स्पेशलिटी विभाग
अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईपीडी तंत्र और आपातकालीन विभाग लोगों को विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा का लाभ आम जनों को मिले, इसीलिए इन परिसरों में आयुष ब्लॉक की भी स्थापना की गई है। साथ ही ई संजीवनी जैसी डिजिटल क्रांति द्वारा दूर दराज के क्षेत्र में बसे लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं देने की शुरुआत भी हुई है। साथ ही नई स्वास्थ्य परियोजनाओं के तहत बनने वाले विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, NHM के अंतर्गत बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण, ICMR के अंतर्गत शोध यूनिट और खाद्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को बदलेंगी। साथ ही PGI-MER चंडीगढ़ के संगरूर और फिरोजपुर के सैटेलाइट सेंटर, जिपमेर पुडुचेरी के कराईकल में स्थित मेडिकल कॉलेज और यनम में स्थित मल्टी स्पेशल यूनिट भारत के कोने कोने तक उन्नत चिकित्सा सेवाओं का आधार रखेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र का ये आधुनिक कायाकल्प पूरा करेगा विकसित भारत का संकल्प। और अब आज यहां राजकोट से एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स मंगलगिरी, एम्स भटिंडा और एम्स कल्याणी का लोकार्पण हुआ है। 5 एम्स, विकसित होता भारत ऐसे ही तेज गति से काम कर रहा है, काम पूरे कर रहा है। आज का दिन सिर्फ राजकोट और गुजरात के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए भी ऐतिहासिक है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का हेल्थ सेक्टर कैसा होना चाहिए, विकसित भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कैसा होगा, इसकी एक झलक आज हम राजकोट में देख रहे हैं। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था, और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे
नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसलिए ही मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके देश की जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 200 से अधिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े अस्पतालों के सैटेलाइट सेंटर हैं, गंभीर बीमारियों के लिए इलाज से जुड़े बड़े अस्पताल हैं। साथियों, आज देश कह रहा है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी पर यह अटूट भरोसा क्यों है, इसका जवाब भी एम्स में मिलेगा। मैंने राजकोट को गुजरात के पहले एम्स की गारंटी दी थी। 3 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पंजाब को अपने एम्स की गारंटी दी थी। बठिंडा एम्स का शिलान्यास भी मैंने किया था और आज लोकार्पण भी मैं ही कर रहा हूं। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी। कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पश्चिम बंगाल को पहले एम्स की गारंटी दी थी। आज कल्याणी एम्स का लोकार्पण भी हुआ। आपके सेवक ने गारंटी पूरी कर दी। मैंने आंध्र प्रदेश को पहले एम्स की गारंटी दी थी। आज मंगलगिरी एम्स का लोकार्पण हुआ। आपके सेवक ने वो गारंटी भी पूरी कर दी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी को एम्स की गारंटी दी थी। कुछ दिन पहले ही 16 फरवरी को उसकी आधारशिला रखी गई है। यानी आपके सेवक ने ये गारंटी भी पूरी की। साथियों, भारत ने कोरोना को कैसे हराया, इसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में होती। हम ये इसलिए कर पाए क्योंकि बीते 10 वर्षों में भारत का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। बीते दशक में एम्स, मेडिकल कॉलेज और क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। हमने छोटी छोटी बीमारियों के लिए गांव-गांव में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा। 10 साल पहले देश में करीब 380-390 मेडिकल कॉलेज थे। आज 706 मेडिकल कॉलेज है। 10 साल पहले एमबीबीएस की सीटें लगभग 50,000 थी। आज 1 लाख से अधिक है। 10 साल पहले
मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सीटें करीब 30,000 थी, आज 70,000 से अधिक है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत में जितने युवा डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उतने आजादी के बाद 70 साल में भी नहीं बने। आज देश में 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चल रहा है। आज भी यहां अनेक मेडिकल कॉलेज, टीबी के इलाज से जुड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर, पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ईएसआईसी के दर्जन अस्पताल भी राज्यों को मिले हैं। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता बीमारी से बचाव और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की भी है। हमने पोषण पर बल दिया है, योग, आयुष और स्वच्छता पर बल दिया है, ताकि बीमारी से बचाव हो। हमने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा दोनों को बढ़ावा दिया है। आज ही महाराष्ट्र और हरियाणा में योग और नेचुरोपैथी से जुड़े 2 बड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। यहां गुजरात में ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा WHO का वैश्विक सेंटर भी बन रहा है। साथियों, हमारी सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि गरीब हो या मध्यम वर्ग, उसको बेहतर इलाज भी मिले और उसकी बचत भी हो। आयुष्मान भारत योजना की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवा मिलने से गरीबों और मध्यम वर्ग के 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे। यानी सरकार ने जीवन तो बचाया, इतना बोझ भी गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ने से बचाया है।